Assalamu alaikum. Students, we are again together for lecture 3, and as you know that we are studying MGT 557, which is Strategic Human Resource Management. So today we will be having first is that the overview of lecture 2, then we will study the process of the human resource management, and then we go on and we'll see that how much we can cover today, and we will also, if we have time today, we will discuss the case study, or then we will, if we don't have the time for today, we will leave it for the next lecture. So today, lecture 3, and as I have told you that we'll be having the overview of lecture 2 today, then we will be completing today our HRM process, human resource process. We will complete it today. Then we will also have a detailed look on human resource system. Then we will discuss and study the aims of human resource management, and then we will study in detail the characteristics of human resource management. So in our lecture number 2, we have studied basically orientation, training, performance management, and compensation. Today we will start from career development, which will basically complete our human resource management process. So let's briefly discuss, to give you the overview of the last lecture, what is orientation. As you know that we have discussed in detail in last lecture that orientation is when the new employee is inducted in the organization. He or she has been given the detailed overview of the organization. He or she has been introduced with the co-workers. They should be briefed basically by about the policies and procedures of the organization, what basically their job has in the organization, the standing of the job in the organization. तो ये सब चीज़ें जो हैं बेसिकली एक नए इंडक्टी जो नया एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में आता है उसको ब्रीफ की जाती हैं. उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एम्प्लॉई की डेवलपमेंट के लिए वो दैट इज़ ट्रेनिंग. सो ट्रेनिंग वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर इज़ अ जनरल ट्रेनिंग एंड देयर इज़ अ स्पेसिफिक ट्रेनिंग. जनरल ट्रेनिंग में जितनी भी जनरल ट्रेनिंग्स हैं जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स है, कस्टमर सर्विसेज है, एंड लॉट ऑफ अदर पार्ट विच वी हैव डिस्कस इन डिटेल, तो वो ट्रेनिंग में आ जाता है. स्पेसिफिक नीड्स, अगर किसी एम्प्लॉय की स्पेसिफिक नीड्स हैं उसको इन्हांस करनी अपनी स्किल्स, तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जाते हैं. देन ऑफ कोर्स यू नो दैट व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली गेट्स इन द पीपल एंड दे एक्सपेक्ट गुड reasonable and performance by the employees. So there is the benchmarking of the performance, and the management of the organization and the employee should know that what are their key performance indicators and what they have to perform. So performance management system जो है वो establish किया जाता है. And after that there is a compensation and benefits. So हमने last lecture में compensation and benefits जो हैं बड़ी detail में discuss किए थे, और basically everybody works in the organization for perform in the organization for the compensation and benefits. What benefit at the end of the day they get from their performance. और ये बड़े motivating factors होते हैं किसी भी employee को motivate करने के लिए, उससे अच्छा काम लेने के लिए, best performance लेने के लिए, that इतना अच्छा compensation and benefits का आपका package होगा organization का, उतनी ही अच्छी आप performance, आपके अच्छे जो employees हैं वो अच्छी performance देंगे. So today we will start from the career development. So what is basically career development? So let's see that basically the sequence of positions held by a person during his or her lifetime. So when a person comes into the organization, तो उसकी वो पूरी लाइफ टाइम जितनी भी अरसे में वो ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करता है या करती है, वो डिफरेंट पोजीशंस पे वो मूव ऑन करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, दे गेट प्रमोशन. सो द सीक्वेंस ऑफ पोजीशन हेल्ड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम, तो वो जो सीक्वेंस है, जो टाइम स्पैन एक एम्प्लॉय ने स्पेंड किया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो बेसिकली उसका एक बेसिकली दिस इज द कैरियर in the organization, or basically career it's in the organization, और अगर आप उसी इंडस्ट्री में किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं
सो इट डजंट मीन दैट अगर आपने एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है डिफरेंट पोजीशंस में वो आपका कैरियर है, यस दैट इज, लेकिन अगर आपने वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया और आपने डिफरेंट लेवल पे आप चले गए हैं, आपने अच्छी हायर पोजीशन ले ली है, आप जब तक आप उसी इंडस्ट्री में मौजूद हैं, याद रखिए कि जब तक आप उसी इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप टेलीकॉम सेक्टर को ले लें। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक टेलीकॉम सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है, वेदर इट इज सेलुलर फोन कंपनी और बेसिकली पीटीसीएल है या मोबिलिंक है या भारत है या जोंग है, व्हाटएवर बेसिकली यूफोन है जो है ऑर्गेनाइजेशन है। सो अगर एक आदमी इंडक्ट हुआ है लेट्स से इन यूफोन एट द इनिशियल लेवल और उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लेट्स से अगर वो एग्जीक्यूटिव पॉइंट हुआ है, मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव पॉइंट हुआ है, उसके बाद वो असिस्टेंट मैनेजर होगा, फिर वो डिप्टी मैनेजर होगा, फिर वो मैनेजर होगा, फिर वो सीनियर मैनेजर होगा, फिर वो जनरल मैनेजर होगा, फिर वो डायरेक्टर होगा, देन इट बिकम वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड इट विल रीच अप टू द प्रेजेंट पोजीशन। सो ये एक हायरार्की ऑफ पोजीशंस है जिसमें थ्रू आउट द कैरियर जो है वो एम्प्लॉय मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी ने, एंड दिस इज द career development. There are various stages and positions in the life of a person which basically moves from initial position to the higher position in the organization. Whereas अगर आप ये देखते हैं कि let's say अगर आप यूफोन का assistant manager है, उसको एक अच्छी ऑफर होती है और बड़ा competent है, उसको अच्छी ऑफर होती है और मोबाइल उसको कहती है कि जी आप हमारे पास एज ए मैनेजर आ जाए। सो दैट इज ऑल्सो कैरियर डेवलपमेंट। अगर वो मोबाइलिंग में एज ए मैनेजर चला गया और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कर रही है तो जोंग उसको कहता है कि जी आप हमारे पास जनरल मैनेजर आ जाए। सो वहां से वो वापस अगर यूफोन में एज डायरेक्टर आ जाता है। सो बेसिकली ये जो प्रोग्रेशन है कैरियर में डजंट मीन दैट यू आर इन वन ऑर्गेनाइजेशन। सो लेकिन आपकी इंडस्ट्री एक होनी चाहिए। अब ये बेसिकली कैरियर डेवलपमेंट में ये बड़ा ट्रिकी सा पॉइंट है कि लेट्स से आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मैनेजर हैं और आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाके जनरल मैनेजर रख जाए। सो ये आपके पूरे कैरियर में एक बहुत बड़ा जोल्ट आ जाएगा, एक मिसमैच आ जाएगा, because your expertise, your grooming, your professional approach, your professional training is basically of one industry, specific industry. और अगर आप जंप करके किसी और इंडस्ट्री में आप चले जाते हैं तो वो बेसिकली that is a mismatch. Whereas the smooth career progression is कि आप या तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आपने ज्वाइन किया और आप रिटायर होकर चले गए और आपका जितना भी आपकी पोजीशंस, आपको प्रमोशन मिली नहीं मिली, लेट्स से आप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन में इंडक्ट हुए और आप मैनेजर होकर रिटायर हो गए 60 ईयर्स की एज पे, या आप प्रेसिडेंट तक प्रोग्रेस कर गए, या आपने whatever the position, it all depends on you that how good you perform in the organization to move ahead. ये आप पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप एनवायरनमेंट को ग्रास्प करते हैं, कितनी जल्दी आप एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करके उसके अंदर जेल इन हो जाते हैं, कितना अच्छा आप परफॉर्म करते हैं, कितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग है इंडस्ट्री की। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉई जो कि वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। सो दिस इज बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू ब्रीफ यू ऑन द कैरियर, व्हाट इज बेसिकली कैरियर। सो पास्ट में पहले कैरियर डेवलपमेंट बेसिकली इज यूज्ड टू बी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, असेसमेंट, ट्रेनिंग और बेसिकली हेल्प ट्रैक एंड रिटेन हाईली टैलेंटेड पीपल। पहले बेसिकली ये होता था कि आपको कैरियर डेवलपमेंट में इंफॉर्मेशन मिल जाती थी, आप लोगों की असेसमेंट करते थे, आप उनको जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते थे जो कि जो ज़रूरी थी इन स्किल्स की इन्हांसमेंट के लिए। और फिर ये ऑल्सो बेसिकली दिस हेल्प्ड इन अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग दी हाईली टैलेंटेड पीपल जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनाइजेशन में है या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है। सो उनको आप अपने पूल में लाने के लिए आपको ये सिस्टम जो है कैरियर डेवलपमेंट का दैट यूज्ड टू बी हेल्प। लेकिन अब नाउ देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट। नाउ द इंडिविजुअल्स नॉट ऑर्गेनाइजेशन। रिमेंबर, ऑर्गेनाइजेशंस ठीक है अपनी जगह पे रिस्पॉन्सिबल होती हैं कैरियर डेवलपमेंट की, बट नाउ ऑनस लाइज ऑन द इंडिविजुअल्स।
So now individuals, not organizations, are responsible for designing, guiding and developing their own careers. Yes, जैसे मैंने आपको कहा कि the person who is in the organization, अगर आप किसी organization में जाते हैं, then you are responsible for your whole career. That how you design the career, how you guide your progression, how you develop your career. तो अब जो साइंटिफिक बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो फिलोसफी है, as far as the career development is concerned, that individuals are now more responsible for the career development. Organizations, yes, organizations play their part. पहले तो organizations used to develop their employees, but now in today's world, जो आप employees हैं, वो खुद they are responsible for developing their own careers. So we can also say that the boundaryless career. So what is boundaryless career? A career in which individuals, not organization, define career progression and organizational narrative. So boundaryless career है basically, उसके अंदर जो individuals हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आजकल के दौर में individuals खुद जो हैं वो responsible हैं अपने career development के लिए. They design, they guide, they strive, they move, they position themselves in a way कि वो अपने career को guide करते हैं, they move ahead. As far as boundaryless career is concerned, इसमें भी individuals, organizations नहीं, individuals, वो अपना career progression खुद define करते हैं. और organizational loyalty, कि how loyal they are towards the organization. So these are very important. Career development is very important in the life of a person who basically does a job. जो बंदा नौकरी करता है, जो बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसकी कैरियर डेवलपमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. दिस इज a human psyche that when you get into the organization, अगर आप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं आफ्टर डूइंग योर MBA, तो आपने सारी जिंदगी यू विल नॉट स्टे एज अ मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव अनटिल एंड अनलेस कि आप में तरक्की करने की ख्वाहिश ही नहीं है, आप में तरक्की करने की एबिलिटी नहीं है. Am I right or wrong? So आप मुझे देख रहे हैं, मुझे आप ये बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाएं और बस उसी पोजीशन में रिटायर हो जाएं? जी बताइए आप. I think none of you wants this. Am I right? Yes, I am right. Because कोई भी आप में से नहीं चाहेगा और दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो ये चाहेगा कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में जाए नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए और वो उसी पोजीशन में रिटायर हो जाए. और अगर ऐसा होता है, इफ दिस हैपेंस, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद दैट पर्सन एंड विद द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. सो रिमेंबर कि इन टुडेज वर्ल्ड you need to understand one thing which is very important. In today's world, if you get inducted in the organization and you stay in that position for 25 years and nobody comes to you and says ke ji do you have any problem, why are you not progressing, why you are not improving, तो ऐसा होने वाला नहीं है, याद रखिएगा. Today, we are living in a comparative world. It's a cutthroat competition. So every company is striving hard to take advantage and move ahead from the other company, from their competition. The competition is very tough. So, and उस कंपटीशन में जो मेजर रोल प्ले होता है, द मेजर रोल इज बीइंग प्लेड बाय द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन डजंट परफॉर्म, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि द स्ट्रेटेजिक बेनिफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कम्स व्हेन इट्स एम्प्लॉयज परफॉर्म एट देयर बेस्ट. सो इफ एम्प्लॉय डजंट परफॉर्म, सो my friends, believe me, nobody will basically keep you in the organization. So
I'm coming back to my point कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पोजीशन में इंडक्ट हुए हैं और सारी ज़िंदगी आपने वहाँ पे काम किया और आप रिटायर हो गए हैं और आपने किसी से नहीं पूछा, तो या आप में कोई प्रॉब्लम है, आप में इशू है, या उस ऑर्गेनाइजेशन में इशू है, या वो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. सो होगा ये कि इफ यू डोंट परफॉर्म, द कंपनी विल आस्क यू थैंक यू वेरी मच एंड they will ask you to leave the company. And if you perform, you will have to move ahead. So you don't have a choice. You only have to work hard to develop, to perform, to move ahead. So आप रुक नहीं सकते organization में. Today, every organization has a career planning for the individuals, those who are inducted in the organization. अब आप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव आए हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो पहले 1 साल 2 साल आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ओरिएंटेशन होती है, आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर आपको बेसिक नॉलेज आती है, आपको बेसिक नॉलेज दी जाती है, आपको डिफरेंट टेस्ट से गुजरना पड़ता है, देन यू मूव अहेड टू द नेक्स्ट पोजीशन. वहाँ पे आपका एक सर्टेन टाइम फ्रेम है, आपने 2 साल 3 साल आपने काम करना है, आपने फील्ड में काम करना है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द जॉब, आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करना है, देन यू मूव अहेड अगेन एंड देन योर ट्रेनिंग, आप मिड लेवल पे चले जाएंगे मैनेजमेंट में, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग्स होंगी. सो ईदर यू हैव टू मूव अहेड in a higher position or you move actually to out of the company. So it's very important. याद रखिए, या तो आप कंपनी में हायर पोजीशन में चले जाएंगे या आप कंपनी से बाहर चले जाएंगे. So the only focus you need to have is the performance, develop your career, stay basically abreast of the knowledge of whatever you are doing and move ahead. Performance is very important. So this is basically career development. Now moving ahead, we will discuss यहाँ पे हम हमारा जो है ह्यूमन रिसोर्स जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है. तो अब हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस शुरू होता है प्लानिंग से. प्लानिंग के बाद रिक्रूटमेंट, डी रिक्रूटमेंट, अगर रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन है, सिलेक्शन के बाद देन यू हैव पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन इट इज ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के बाद देन यू हैव बेसिकली ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद आपके पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस होता है, वहाँ पे आप उसके बाद कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स आती हैं, उसके बाद आपको कैरियर डेवलपमेंट आपकी होती है और आपने ऑर्गेनाइजेशन में व्हेन यू कम इनटू द ऑर्गेनाइजेशन यू आर डिफरेंट पर्सन एंड व्हेन यू लीव द ऑर्गेनाइजेशन यू आर डिफरेंट पर्सन एंड इन बिटवीन अगर आप स्टेजेस को देखें तो यू एवरी टाइम एट एवरी स्टेज यू विल सी दैट यू आर अ डिफरेंट पर्सन. सो नाउ विल सी कि आजकल के दौर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इश्यूज क्या हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बिकॉज ह्यूमन, जहाँ पे ह्यूमन का वर्ड आता है, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वहाँ पे इश्यूज आते हैं, इट्स नेचुरल. तो वो हम देखते हैं कि वो इश्यूज क्या हैं, क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं, एंड हाउ वी कैन बेसिकली ओवरकम दोज इश्यूज. सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब ऑर्गेनाइजेशंस में आपने देखा कि जब इकोनॉमीज में रिसेशन होता है तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डाउन साइजिंग पे चली जाती हैं. जब इकोनॉमीज ग्रो कर रही होती हैं तो दी कंपनीज एक्सपैंड देयर ऑपरेशंस, दे हायर मोर पीपल, बट जब इकोनॉमीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती हैं तो वो डाउन साइजिंग करती हैं. अब डाउन साइजिंग जो है ये फ्रैंकली स्पीकिंग बड़ा तकलीफ दे स्टेज है, नॉट ओनली फॉर द एम्प्लॉयज but for the employers as well, because you should remember one thing, that organizations are also made up of human beings. So this is where कोई जहाँ downsizing हो रही होती है तो उन जो organizations हैं उनके लिए भी बड़ा ये tough decision होता है. Remember one thing, it's not that easy कि आप आज ऑर्गेनाइजेशन में आए और शाम को पता चला कि जी वो दे टेल यू दैट यू आर नो मोर नीडेड. होता है ऑर्गेनाइजेशन में, होता है, यहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस में होता है, बहुत सारी बड़ी कंपनीज भी करती हैं, लेकिन देन देयर आर लॉट ऑफ लॉज आल्सो जो प्रोटेक्ट करते हैं आपके राइट्स को, तो वो हम लेटर ऑन डिस्कस करते रहेंगे. सो आज अभी जो हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मैनेजिंग डाउन साइजिंग. सो हाउ टू मैनेज डाउन साइजिंग.
Basically, downsizing जो है, this is planned elimination of jobs in an organization. So, जब आपको पता है कि recession है, आप कंपनी ने जो है वो अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको कर्टेल किया है, and you need less people, so you make a surplus pool. So you plan कि जो अब basically surplus लोग हैं उनको हमने कैसे मैनेज करना है ताकि वो जॉब सेपरेट हो जाए, and they move ahead and then they continue their own life according to their own ways and wishes and means. So basically downsizing is basically a planned elimination of jobs in organization. So you need to have a proper planning while downsizing. इसके लिए जो important elements हैं, जो important चीज़ें हैं, वो you need to keep in your mind that you need to provide open and honest communications. Organization में एक चीज़ याद रखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो एलिमेंट रोल प्ले करता है वो दैट इज कम्युनिकेशंस, और हम बेसिकली इसको कहते हैं इंटरनल कम्युनिकेशंस. तो द इंटायर कम्युनिकेशंस जो कि बेसिकली इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होती है बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द मैनेजमेंट, दैट इज बेसिकली नोन एज द internal communication. So it's a 360 degree है ये up, right, center. So it's communication between the organization, among the employees, workers, management. So this is internal communication. So organizations which need to basically survive in contracting economies or downsizing, they need to be open and honest in their communication. The day you basically lie to your employees, you basically hide things from people, वो एक mistrust develop हो जाता है. जब mistrust develop हो जाता है, remember the organization की credibility जो है वो खत्म हो जाती है. So one thing which is very important for the organization is the trust and the credibility of the organization in the minds and the hearts of the employees. याद रखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया कि जब एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है वो उस वक्त तक परफॉर्म नहीं करेगा जब तक कि वो ऑर्गेनाइजेशन को ओन नहीं करेगा. Until and unless you own the organization, आप प्राइड नहीं लेंगे और परफॉर्म नहीं करेंगे. एंड सिमिलरली जब तक एम्प्लॉयज आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपकी इंटेग्रिटी पे डाउट करेंगे, सो वो रिलेशनशिप विल नेवर लास्ट. और वो क्या होगा, रिमेंबर वन थिंग, योर एम्प्लॉयज आर योर एम्बेसडर्स. वो आपके एम्बेसडर्स हैं. So when they go home, they talk about the organization. When they are with their family, they talk about the organization. When they are with the friends, they talk about the organization. And wherever they are, when they have interaction outside the organization, they talk about the organization. And this is very important that your employees have basically spread goodwill of the organization from their word of mouth to the other people. That is how you create a goodwill for the organization. So, if the organization has a goodwill, trust, credibility among its employees, definitely that organization tends to stay there forever. So, the time you don't have the credibility, forget about it. You are going to close down sooner or later. So when you need to manage the downsizing, you need to be basically open and honest in your communication. So this is the rule number 1. Now, rule number 2 is that provide assistance to employees being downsized. So rule number 2 is that you can't leave people alone when you are downsizing. You can't tell them we don't need you tomorrow, and then leave them at the mercy of the environment.
mercy of the other people, mercy of the God. They're helpless. So it is very important. Again, when you are downsizing, if you assist your employees, you sit with them, you talk with them, you help them in finding other jobs, you support them, again, they will understand the issues of the company, they will understand the issues that there's a downsizing, the recessions, and they are not basically cruel to the employees. So one thing which is very important, that while downsizing, the impression should not go that the organization is cruel towards the employees. Yes, you need to downsize. There is an economic issues. There are basically cash flow issues. You have to take this decision. This is very important. Because if you don't take this decision of downsizing, ultimately today, tomorrow, day after, your entire organization is affected, and the entire organization is basically being closed down. So you need to take the action today, but that action has to be planned and managed, and then your employees, those who are basically being downsized, the organization need to assist them, support them in a way that they again gets the goodwill for the organization. So this is very important. And then reassurance and counseling to surviving employees. And then there should be basically counseling. Again, it's very important. When there is downsizing, remember one thing, there is the element of insecurity among the employees. Yes, very important. Then if they see that, let's say, this much number of people are being basically asked to leave, so those who are working, the environment of insecurity comes in. They will also see that we may be asked to leave tomorrow, day after, depends. So that element of insecurity should not arise among the existing employees, because if that insecurity arises, then their confidence is being shaken. And if the confidence is being shaken, my friend, nobody will perform. They will start looking jobs. So and ultimately the organization will suffer. So this is something which is very important, and you need to understand this. So we need to sit, reassure, and do counseling to the surviving employees. You need to build the confidence among them. You motivate them that okay, there's no issues. You are there. We'll look after you. And again, the most important element is open and honest communication. You need to develop the credibility of the organization, the trust, the mutual trust. The employees should trust the organization should trust the employees. So this is very important, and if this relationship establishes, then organization not only survive, they come out of the recession, and again they can rehire as well. But today we are here talking about the managing downsizing, and managing downsizing is a science and an art. So you have to be very, very careful, and has to be very methodical and scientific while the downsizing. So I have already basically highlighted a couple of elements which needs to be kept in mind. Now, in last lectures we have basically also touched upon the workforce diversity. Workforce diversity is very important. Workforce diversity basically builds a rich culture in the organization, brings harmony into the organization, and basically transforms organization to a one family. Remember one thing, organizations, yes, organizations are the businesses, and they are doing the businesses, but they have to be one family. And one family has to be basically have the bonding relationship between all the people, those who are working at the different levels in the organization.
So there should be one big family, and basically workforce diversity plays a vital role in making an organization a family, because different various cultures comes in, and then you need to manage all those cultures to basically create harmony and basically rich culture of the organization. So how to manage workforce diversity? Basically, it is very important that the organization widen the recruitment net for diversity. It's very important that organization recruit the people from various parts of the country. If it's a national organization, we are talking about Pakistan. If we basically live in Pakistan and a company has its operation in Pakistan, then it should employ people from all over the Pakistan. For example, people from Azad Kashmir, Gilgit-Baltistan, Potohar, basically Punjab, this southern province, southern Punjab, Sindh, Balochistan, KPK. So basically the entire flavors of the cultures that has to be basically gelled in, and then it all depends that the competent peoples are everywhere. The competent people, the people, those who are fit in basically in the organization according to the job specification and the job description. Basically, you find people everywhere. So for workforce diversity, that recruitment net has to be widened, and people from across the country, from different cultures, should be brought into the organization. And this will add on, basically, this will create a spring in the organization. It is basically a rainbow of the organization. Remember one thing, that cultural diversity basically brings in spring. It's just like a garden, that you have flowers of various variety in the garden. So the roses, the lilies. So these basically cultures, these people bring in their cultures, and then the management manages the workforce diversity, and it will add on a very harmonious. These workforce diversity has its hindsight as well. वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के अपने मसाइल भी होते हैं, याद रखिएगा, बट इसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और इसके नुकसानात कम हैं. और बेनिफिट्स में भी जब अगर मैनेजमेंट को पता हो कि उसने मैनेज कैसे करना है, तो ये एक बहुत खूबसूरत कल्चर डेवलप करती है ऑर्गेनाइजेशन में. और अगर आप बड़ी कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज देखें, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, और बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे एयरलाइंस को आप देख लें. लेट्स से इफ़ यू ट्रैवल इन एमिरेट्स, अगर आपने कभी, आप लोगों में से इत्तेफाक हो किसी को एमिरेट्स में, इत्तेहाद में, ब्रिटिश एयरवेज में, किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइन में, सिंगापुर एयरलाइंस में अगर आपको इत्तेफाक हो ट्रैवल करने का, तो वहाँ पे जो कैबिन क्रू है, जो आपके स्टूवर्ड्स हैं, फ्लाइट स्टूवर्ड्स हैं या एयर होस्टेस हैं, उसमें आपको डिफरेंट कल्चर्स के लोग मिलेंगे. उसमें आपको पाकिस्तानी मिलेंगे, उसमें आपको अरबी मिलेंगे, उसमें आपको रशियन मिलेंगे. अच्छा, डिपेंड करता है कि वो फ्लाइट बाउंड, अगर वो पाकिस्तान से वो दुबई की, अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर हम एमिरेट्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान दुबई है, तो आपको पाकिस्तानी स्टाफ मिलेगा. और अगर वो वहाँ से चाइना जा रही है तो वो चाइनीज स्टाफ मिलेगा. तो एक मिक्स है, एक आपको मिक्स मिलेगा कि आपको जिस मुल्क के उनको आइडिया होता है ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो उसका कस्टमर जो है वो किस मुल्क से है, तो वहाँ पे उस मुल्क की वो फ्लेवर ज़रूर मौजूद होता है. तो याद रखिएगा, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को बहुत अच्छी तरह मैनेज करती हैं और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. बिकॉज वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो बेसिकली एडवांटेज ये है कि वो जिस टारगेट ऑडियंस को आप कैटर कर रहे होते हैं, और उस टारगेट ऑडियंस के जो एम्प्लॉयज़, उस रीजन के एम्प्लॉयज़ अगर आपके पास हैं, तो इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड देयर साइकी, इट हेल्प्स यू बेसिकली सर्व देम बेटर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कस्टमर को हैंडल आपने करना है तो उसके डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक्स का आपको पता होना चाहिए.
आपने ये मार्केटिंग में पढ़ा होगा, आपने एडवर्टाइजिंग में पढ़ा होगा कि मार्केटिंग के वक्त आपको जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, आपके साइकोग्राफिक्स एंड डेमोग्राफिक्स का आइडिया होना चाहिए। और ये ज़्यादातर आपको इजीली समझ आ जाती है कि उसी कल्चर के लोग अगर आपके पास हैं तो वो दैट विल बेसिकली गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज कल्चर्स दोज हु आर सर्विंग। सो एक तो रिक्रूटमेंट के लिए अगर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी जो है वो आपने इंश्योर करनी है, मैनेज करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको रिक्रूटमेंट का जो नेट है वो बहुत स्प्रेड करना है। उसके बाद देन इंश्योर सिलेक्शन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। नाउ वन थिंग इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू पीपल बेसिकली कीप इन योर माइंड मेरिट मेरिट एंड मेरिट। आई रिपीट अगेन, एक चीज़ आप लोग याद रखिए, आप लोग जब जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव करते हैं, इफ द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू सर्वाइव, दैट हैज टू बिलीव इन मेरिट। आई रिपीट अगेन, दैट हैज टू बिलीव इन मेरिट एंड नथिंग बट द मेरिट। अगर ऑर्गेनाइजेशन में मेरिट नहीं है और सिफारिश कल्चर है तो वो ऑर्गेनाइजेशन, वो सिस्टम कभी सर्वाइव ही नहीं कर सकता, याद रखिएगा। और जिस सिस्टम में मेरिट है वो सिस्टम नॉट ओनली सर्वाइव्स बट थ्राइव्स एज वेल। आई मीन कि जिस सिस्टम में मेरिट है, नॉट ओनली वो जो सिस्टम है वो कायम रहता है बल्कि वो बहुत तरक्की भी करता है। सो मेरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो सिलेक्शन कर रहे होते हैं, जब एम्प्लॉय इंडक्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें आपने एक चीज जो जहन में रखनी है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन हो, जो आपका जॉब क्राइटेरिया है, जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, अगर कैंडिडेट्स उसको मीट करते हैं और उसमें से अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, बट डिस्क्रिमिनेशन यू अंडरस्टैंड दैट अगर आपको लेट्स से competent females हैं और मेल्स इतने competent नहीं है and you want that males should be inducted, so then you'll be doing a discrimination. अगर आपने ये देखना है कि जी अगर आपने वहाँ पे आप खुद अगर लेट्स से पंजाबी हैं और आपने ये देखना है कि जी नहीं यहाँ इस पोजीशन में पंजाबी लेना है, लेकिन उसके अगेंस्ट लेट्स से कोई KPK से या सिंध से या कोई अदर जो रीजन का कैंडिडेट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, and if you do favor to a person which basically is close to your culture, then that is discrimination. Never do a discrimination. If you do a discrimination, you are basically destroying the organization. So याद रखिए, discrimination should not basically be done in selection. So the human resource managers and the CEOs of the organization must ensure that the selection should be done on merit and there should be नो डिस्क्रिमिनेशन। और उसके बाद जो बेसिकली लास्ट पार्ट इसका है मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का, उसके अंदर इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, दैट यू नीड टू प्रोवाइड ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज, बट दैट ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग हैज टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव। दैट इज दैट orientation and training has to be the state of the art, basically being done being done in a professional way and should be very effective. This is basically the stepping stone, the first brick, the cornerstone basically which sets the your direction. So the orientation and training basically is very important and that should be very effective. Now basically moving ahead, again we have basically issues of harassment, and as you know that we live in the male chauvinistic society जहाँ पे मर्द जो हैं वो डोमिनेट करते हैं, और अब बेसिकली ख़वातीन जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस में आ रही हैं, एंड बेसिक मल्टीनेशनल एंड द गवर्नमेंट एंड बेसिकली द कॉर्पोरेट सेक्टर आर इनकरेजिंग। आपने देखा होगा कि देयर इज बेसिकली इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और लॉ में भी अब आ गया है कि दे शुड बी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, दे शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। और
बेसिकली हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है कि जो फीमेल्स हैं हम उनको वीकर सेक्स भी कहते हैं. They face basically lot of discrimination and advances that should not be there. Ab to khair, it's very good. The government has basically brought in the Women Protection Ordinance. It's a very, very strict law. Very, very strict law. So now basically our sisters working in the organizations basically take basically a sigh of relief that Women Protection Ordinance is very strong, and now this harassment element basically will go down with a rapid pace. Believe me, with a rapid pace. It's a very strict law. So, but we need to understand what is basically the harassment as far as the women is concerned. Basically, it is an unwanted activity of that affects an individual's employment. Any activities which is basically not into the cultural, ethical norms, which basically affects the individual's employment, is basically harassment. And unwanted advances, requests for illicit favors, and other verbal or physical conduct of a sexual nature when submission or rejection of this conduct explicitly or implicitly affects an individual's employment. So, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि कोई ऐसा अमल जो कि आपकी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ना हो, एथिकल ना हो, आपकी कल्चरल नॉर्म्स में ना आता हो, गैर मुनासिब, गैर मुहज़्ज़ब हो, और जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी जो वीकर सेक्स है, ख़वातीन हैं या जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको ज़हनी अज़ियत हो उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और इंडिविजुअल की जो एम्प्लॉयमेंट है उसे इफेक्ट हो, दैट कम्स इनटू द हरासमेंट एलिमेंट. और एक चीज़ याद रखिएगा, इट्स नॉट ओनली फॉर द वेमेन, इट्स फॉर द मेन एज वेल. सो नाउ इफ men basically has an inappropriate attitude towards women, that comes into that Women Protection Ordinance. If women, remember one thing, if women has an improper or inappropriate basically attitude or inappropriate advances towards the man, she is also basically liable to be punished if proved through this ordinance. So it is basically for both men and women. So basically this harassment is basically an offense or hostile environment. So environment in which a person is affected by elements of sexual in nature. So this is self-explanatory. And again, we also need to look at the workplace romances. So as the studies are opening up, we basically are experiencing the workplace romances. That also needs to be curtailed, managed by the management, and that also there are laws and regulations and policies in the organization as well, that anything which does not conform the ethics and norms, cultural norms of the society, of that organization, then that is liable for the punishment. So potential liability of harassment. So workplace romances are also basically a potential liability for the harassment. So these are the current HRM issues. So moving ahead of current issues in HRM. Yesterday, basically, so cut lagana, edit lagana. Okay. So moving ahead, current issues in HRM. In last lecture, we've discussed the work-life balance. Work-life balance is very important. और हमने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था. जैसे मैंने कहा था कि हम घर में दफ्तर का काम कर रहे होते हैं और दफ्तर में घर का काम कर रहे होते हैं, तो इससे दफ्तर वाले भी हमसे नाराज़ होते हैं और घर वाले भी हमसे नाराज़ होते हैं. सो वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हम आगे चल के
केस स्टडीज भी इस पे देखेंगे ताकि हमें मजीद समझ आए कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है हमने कैसे मैनेज करना. सो व्हाट इज वर्क लाइफ बैलेंस? Employees having personal lives that they don't leave behind when they come to work. So, हमने ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अपनी पर्सनल लाइफ्स हैं और वो बेसिकली छोड़ के नहीं आते जब वो काम पे आते हैं, तो दे कैरी देयर लाइव्स विद देम. अब उनको मैनेज कैसे करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन का भी रोल है और कुछ एम्प्लॉयज का अपना भी रोल है, और ज्यादातर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एम्प्लॉयज नीड टू बी बेसिकली गिव ट्रेनिंग ऑन दैट. बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि चीजें कैसे मैनेज करनी है. बहुत 90% लोगों को नहीं पता होता. सो इसीलिए वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, दैट हाउ टू मैनेज बेसिकली, हाउ टू ब्रिंग अ बैलेंस between life and work. So इसमें organizations का बड़ा रोल होता है. So organizations have become more attuned to their employees by offering family friend benefits. So जो modern organizations हैं, अब जो change आ रहा है टेक्नोलॉजीज में, दुनिया डेवलप कर रही है, नॉलेज शेयरिंग हो रही है, एक्सपीरियंसेस बेसिकली दुनिया भर के अब आप बहुत जल्दी हासिल कर लेते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी अपने आप को ट्यून कर रही हैं, वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर रही हैं, जो दे ऑफर बेसिकली देयर एम्प्लॉयज फैमिली फ्रेंड बेनिफिट्स. एंड what are the basically in the good organization, wo basically they offer on-site child care. So there are a lot of organizations, big organizations, they have built in child care centers कि आप आते हैं, आपके बच्चे हैं, वर्किंग वुमेन हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, व्हाट दे डू इज दे ब्रिंग इन देयर किड्स. आपने उसी विसिनिटी में चाइल्ड केयर है और उसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो आप वहाँ पे बच्चों को छोड़ते हैं, ऑफिस आ जाते हैं, जब वापस जाते हैं तो आप बच्चों को साथ ले लेते हैं. सो बेसिकली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं. पाकिस्तान में भी होता है. समर डे कैंप्स, फ्लेक्स टाइम्स, जॉब शेयरिंग, लीव फॉर पर्सनल मैटर्स, फ्लेक्सिबल जॉब आवर्स. सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये सारी चीज़ें वर्क लाइफ बैलेंस के लिए मैनेज करती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि उनको कन्वीनियंस मिले. उनकी जितनी परेशानियां पर्सनल काम होंगी वो उतना ही अपना टाइम डिवोट करेंगे, क्वालिटी टाइम डिवोट करेंगे टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, और उतना ही अच्छा वो परफॉर्म करेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी देंगे जब उनको पता होगा कि उनके पर्सनल मैटर्स जो हैं दे हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो अच्छे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हैं, जो अच्छी कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनके बहुत अच्छे इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स हैं, दे बेसिकली इंश्योर that they offer family friend benefits to their employees कि उनके पर्सनल इश्यूज जो हैं वो कम हो और वर्क लाइफ बैलेंस में उनको आसानी पैदा हो. सो दीज आर द इश्यूज विच बेसिकली कम्स इनटू बेसिक वर्क लाइफ बैलेंस. अगेन ये भी अभी हम वी आर कंटिन्यूइंग द इश्यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि आजकल चल रहे हैं. और अगेन एज यू नो, the purpose of the organization is the profit maximization, and profit maximization often comes through controlling costs. और जब cost controlling हो रही होती है तो then it is very important to control HR costs. So now how to basically control HR costs? तो अब हम देखते हैं कि employee health care, basically इसमें employees की health care में आप cost को कर्टेल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. हाउ यू कैन डू इट? इनकरेज हेल्दी लाइफस्टाइल्स. आप फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देते हैं, आप वेलनेस प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करते हैं. अगेन चार्जिंग एम्प्लॉयज विद पुअर हेल्थ हैबिट्स मोर फॉर ऑफन बेनिफिट्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी लाइफस्टाइल का जो कल्चर है वो डेवलप करते हैं. स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ब्रेक्स में आप इनकरेज करते हैं कि जिम्स ऑर्गेनाइजेशन में बने हुए होते हैं, द पीपल शुड गो टू द जिम, पीपल शुड बेसिकली प्ले टेबल टेनिस, और उससे नॉट ओनली हेल्थ बेनिफिट और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि कल्चरल जेलिंग इन हो जाती है लोगों की. वेयर एज बेसिकली एम्प्लॉयज़ की हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से
आप ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कल्चर इंट्रोड्यूस करते हैं जो हेल्दी लाइफस्टाइल्स हो, जिसमें आप बीमार कम होते हैं और उसकी आपकी हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। फिर आप फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देते हैं कि एक फैमिली है या जो एक एम्प्लॉई है उसकी फैमिली पूरा साल बीमारी नहीं हुई, तो उनको एक बेनिफिट दे देते हैं कि आपको ये आपने मेडिकल अलाउंस नहीं लिया तो ये आपको हम बेनिफिट देते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ बोनस। तो ये भी एक टेक्निक है कॉस्ट को कंट्रोल करने का। फिर आप वेलनेस प्रोग्राम्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंट्रोड्यूस होते हैं, तो वेलनेस प्रोग्राम्स बेसिकली ऑल्सो पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग हेल्थ केयर कॉस्ट्स। और फिर जब ये सब चीज़ें काम ना दिखाएं और बेसिकली पीपल दोज हु हैव हैबिट्स ऑफ पुअर हेल्थ, स्मोकिंग है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको बेसिकली उनको चार्ज करें, उनके ऊपर फाइन्स लगाते हैं, उनको बेसिकली इंसेंटिव्स भी देते हैं कि यार इम्प्रूव योर हेल्थ। और अभी आपने देखा होगा कि आई थिंक इट्स वर्ल्ड ओवर एंड इवन इन पाकिस्तान in all multinationals they have basically prohibited smoking inside the offices. So there is smoking law is वो भी आ गया है, तो अब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप स्मोक नहीं कर सकते। तो there are smoking rooms, smoking corners और बिल्डिंग्स के बाहर जाके आप स्मोक कर सकते हैं। So पुअर हेल्थ हैबिट्स को भी डिस्करेज किया जाता है और फाइन्स लगाए जाते हैं। Then comes in basically employee pension plans. So अब कॉस्ट कंट्रोल जो है एक तो एम्प्लॉय हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है कॉस्ट कंट्रोलिंग, और उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। और फिर जो एम्प्लॉय पेंशन प्लान्स हैं उसमें भी बेसिकली आप कॉस्ट कंट्रोल करते हैं एचआर की, जिसमें आप पेंशन के बेनिफिट्स जो हैं वो कम कर देते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने अब तो बेसिकली पेंशन प्लान्स को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। So basically HR cost controlling is also a major issue in the organization in today's world. So the human resource system, इसके अंदर what we have is the human resource philosophies, human resource strategies and human resource policies. So human resource philosophies, so let's describe what is the human resource philosophies. Basically human resource philosophies are describing the overarching values and guiding principles adopted in managing people. तो human resource जो policies हैं basically वो क्या describe करती हैं, values और guiding principles जो कि organization adopt करती है in managing people. I repeat again that human resource जो philosophies हैं, किसी भी organization की जो human resource philosophy है वो basically describe करती है values और guiding principles जो कि adopt किए जाते हैं in managing people. That is basically human resource philosophy. Now coming towards the human resource strategy. Human resource strategy क्या होती है? Basically defining the direction in which HRM intends to go. So it is very important. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस में एक डायरेक्शन बड़ी जरूरी है। इफ यू डोंट हैव अ डायरेक्शन यू कांट मूव। फ्रैंकली स्पीकिंग, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ गए और सारी जिंदगी वो एक ही पोजीशन पे रहा और रिटायर हो गया। इसका क्या मतलब है कि ना उसकी कोई डायरेक्शन थी ना ऑर्गेनाइजेशन की कोई डायरेक्शन थी। सो बोथ वर डायरेक्शनलेस। और एंड आई कैन गारंटी यू कि जिन ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय आके जिस पोजीशन में भर्ती हुआ है उसी पोजीशन में रिटायर हो रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी उससे 1 इंच आगे नहीं गई होगी, वो भी वहीं पे होगी जहां पे वो उस दिन थी जब वो एम्प्लॉय इंडक्ट हुआ, और जब वो रिटायर हुआ तो उसकी भी स्टेटस वही होगा जो उस वक्त था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्ट्रैटेजी के अंदर ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजीज में क्या होता है? ह्यूमन स्ट्रैटेजी इज बेसिकली अ डायरेक्शन इन विच ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंटेंड्स टू गो। आपकी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी ये है कि आपकी वो डायरेक्शन कि जिस डायरेक्शन में आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को लेके जाना। सो दैट इज बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजीज। और HR पॉलिसीज क्या है? HR पॉलिसीज आर बेसिकली the policies basically these are the guidelines
ठीक है, these are the guidelines excuse me, these are the guidelines defining how these values, principles, strategies should be applied and implemented in a specific area of HRM. तो याद रखें, जो HR पॉलिसीज हैं वो बेसिकली गाइडलाइंस हैं और वो डिफाइन करती हैं कि किस तरह वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, स्ट्रैटेजीज जो हैं वो अप्लाई की जाती हैं और इम्प्लीमेंट की जाती हैं HRM के अंदर। अंडरस्टूड? समझ आई आपको? नहीं आई तो मैं दोबारा बता देता हूं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज क्या है? बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज जो हैं वो गाइडलाइंस हैं। जैसे हमने HR फिलॉसफी की बात की, तो HR फिलॉसफी क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज हैं, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो कि वो अप्लाई करते हैं ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, तो वो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी हो गई। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फिलॉसफी है कि हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स को अपने बच्चों की तरह इंपॉर्टेंस देनी है। फ्रैंकली स्पीकिंग, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, जितना वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको लुक आफ्टर करते हैं, और इस रिटर्न में आप भी उनका ख्याल रखते हैं, आप उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स हैं, देयर आर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स, कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया में जो अपने एम्प्लॉयज को दे रिगार्ड देम देयर ओन, बेसिकली मोर देन देयर ओन किड्स, their own family के जब हम वर्ड यूज करते हैं, मीन्स कि they are part of one family, they are basically a blood relation, they look after each other. So basically बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी वैल्यू होती है, जिनकी फिलॉसफी होती है कि हमने अपने लोगों का ख्याल रखना है, और फिर वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स बेसिकली कि किस तरह लोगों को मैनेज करना है, किस तरह उनका ख्याल रखना है। तो ये तो आपकी हो गई फिलॉसफी। स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? कि वो डायरेक्शन जो कि आपने जिस डायरेक्शन में अपनी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को लेके जाना, आपने किस तरह लोगों को डेवलप करना है, किस तरह अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखना है, किस तरह कंपनसेशन में बेनिफिट करनी है, किस तरह लोगों को रिटेन करना है, किस तरह लोगों को हायर करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, वो एक डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में हमने मूव करना है, हमने किस तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना है एज फार एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न। तो दैट इज बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज। और फिलॉसफीज क्या, पॉलिसीज क्या है? पॉलिसीज वो हैं, ये दीज आर द गाइडलाइंस जो कि डिफाइन करती हैं वैल्यूज, प्रिंसिपल, स्ट्रेटजीज जो कि अप्लाई होती हैं और इम्प्लीमेंट होती हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कि पूरे सिस्टम को आपने चलाना होता है, और इसमें आपकी वैल्यूज, आपके प्रिंसिपल्स, आपकी स्ट्रेटजीज जो हैं, जो अप्लाई करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं HRM में टू सक्सीड, टू अचीव योर गोल्स, इज बेसिकली थ्रू दी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं जी ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेसेस। व्हाट इज द ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेसेस? बेसिकली human resource processes basically consisting of a formal procedure and methods used to put HR strategic plans and policies into effect. तो प्रोसेस क्या है आपका? कि जो फॉर्मल आपके प्रोसीजर्स और मेथड्स हैं जो कि यूज होते हैं ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजिक प्लान्स और पॉलिसीज को अफेक्ट में डालने के लिए, उनको इफेक्टिव करने के लिए, उनको अप्लाई करने के लिए जो फॉर्मल प्रोसीजर्स हैं वो बेसिकली जो यूज होते हैं, दे आर नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेसेस। नाउ कम्स इन द ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस आर द इनफॉर्मल अप्रोचेस, these are the informal approaches used in managing people. So HR practices क्या है? कि आपकी इनफॉर्मल अप्रोच जो कि आप लोगों को मैनेज करते हैं। जैसे हम बड़ी कॉमन लैंग्वेज में लोग कहते हैं यार इसको प्यार मोहब्बत से समझा दो, ये इसको, मतलब कोई आपने लेटर, किसी ने कोई वॉयलेशन किया है, किसी ने किसी के साथ बदतमीजी किया है, कोई रूल को वायलेट किया है, तो आप बजाय इसके कि ह्यूमन रिसोर्स या एडमिनिस्ट्रेशन वाले उसको एक्सप्लेनेशन कॉल करें, कोई लेट हो जाता है, तो आप वो बेसिकली उसको वार्निंग लेटर दे दें, उसको मतलब और अंडर प्रेशर कर दें जिससे उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही हो। सो व्हाट यू डू इज बेसिकली इनफॉर्मल आप उनको
बिठाते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड उसका मसला क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, प्यार से उसको समझाते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, और बिलीव मी कि 99% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। सो 99% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है इनफॉर्मल तरीके से। अगर आप फॉर्मेलिटी में चले जाएं तो प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाती है, बजाय ठीक होने के वो और ख़राब हो जाती है। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ही है कि इश्यूज को रिजॉल्व करना, स्विफ्टली लेके चलना, सिस्टम में हार्मनी, ह्यूमन मैनेजमेंट सिस्टम में हार्मनी पैदा करना जिसमें ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस कर सके। एंड देन कम्स द HR प्रोग्राम्स, और HR programs basically enable HR strategies, policies and practices to be implemented according to the plan. So HR program क्या है? This is the overall program जिसमें basically HR strategies, HR policies, HR practices जो हैं वो implement होती हैं according to the plan. तो जब आप strategic एक plan बनता है, शुरू में साल के शुरू में एक स्ट्रेटेजिक प्लान बन जाता है कि जी दीज आर आवर पॉलिसीज, दीज आर आवर प्रोसीजर्स, दीज आर आवर स्ट्रैटेजीज, दीज आर आवर प्रैक्टिसेस, और उनको सबको इम्प्लीमेंट जो करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द प्लान, वो दैट इज बेसिकली HR प्रोग्राम्स। तो वो इम्प्लीमेंट होती है थ्रू HR प्रोग्राम्स, और फिर उसको मॉनिटर किया जाता है कि आपका प्रोग्राम कितना इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुआ है। तो उसको भी हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। सो टुडे वी एंड आवर चैप्टर इन दी ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम। ये मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया है ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम का, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास टाइम होगा तो फिर हम केस स्टडी जो ऑलरेडी आपके पास है वो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वी विल डिस्कस इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन फर्स्ट वी विल कंप्लीट these human resource system, human aims of the human resource, and then the characteristics of the human resource, और फिर हम केस स्टडीज को देखेंगे। केस स्टडीज के बाद फिर हम we will go into the strategy कि what is the strategy, और उसको पूरी डिटेल में हम देखेंगे, और स्ट्रेटजी को डिटेल में देखने के बाद फिर हम स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फिर हम हर लेक्चर में वी विल डू डिस्कस वन केस स्टडी एंड देन द थियोरेटिकल पार्ट। सो टिल बेसिकली द नेक्स्ट लेक्चर विच इज आवर फोर्थ लेक्चर, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। याद रखिए आपके पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट फॉर यू, and you are the most valuable asset for your parents. तो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा और मेहनत से ज़िंदगी को कामयाब बनाएगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको मुझसे कोई सवाल है तो मेरा ऑलरेडी आपके पास ट्विटर का ID है, it's @i_Ghaznavi। आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। आई एम ऑलरेडी ऑन द फेसबुक, आई हैव गॉट माई पेज, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आपके जो भी सवालात होंगे आई विल ट्राई टू answer those. Thank you very much. God bless you. Pakistan Zindabad.